Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome back to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे हम करते हैं exam specific exam relevant discussion in just a few minutes and we also see whether that particular article is important for your prelims or important for your mains और mains में कौन से GS पेपर में GS 1, 2, 3 etc. This is also we see. देखते हैं दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल्स आज फ्रेश है इंपॉर्टेंट हैं जो हम कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डू 3 आर्टिकल्स टुडे, 3 फ्रेश आर्टिकल्स, 2 रिपीटेड आर्टिकल्स हैं and we have covered those articles in greater detail in the previous editorials. I will share the link with you. So let's check about the fresh articles that we are going to discuss. The first one is like a very important one, by the way. बहुत एक अच्छा आर्टिकल है जो लिखा है हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर ने, मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा ने, एंड ही हैज रेज्ड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट बाय द वे which is generally ignored, and this becomes like really super important for your GS2 this year. health में, so there is health and education, right? So उसमें health में, rural health में focus कर सकता है UPSC because you see the COVID pandemic has this time in the second wave struck the rural areas very hard. First wave में आपको पता है the rural areas were not very impacted. It was by and large an urban phenomenon. Cities में हो गया, towns में हो गया, maybe small towns में हो गया, but rural areas by and large they were unscathed. बट इस बार क्या हुआ आपको पता है, यूपी में क्या हो रहा है, कितना बुरा हाल है, एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो. इन द केस ऑफ ओडिशा, इवन द पीवीटीजीज लाइक डोंगरिया कोन्स. सो देयर हैव बीन लाइक रिपीटेड कवरेज ऑफ न्यूज कि किस तरीके से इतने आइसोलेटेड ट्राइबल्स हैं, वहां पे भी कोरोना पैंडेमिक कितना सीवियर है, एंड मेनी हैव डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस. सो that points to a very grave challenge that India is facing, that what sort of rural healthcare we have. In fact, urban areas में भी आपको पता है, barring some few cities, top cities I'm talking about, किस तरीके का हमारा health infrastructure है. I'm talking about the small towns and small cities. So it's not very good, you know. And when it comes to rural area, it is very bad, and this is something which needs to be fixed. और ये जो क्राइसिस है, इनफैक्ट दिस कैन बी टेकन एज अ सोल सर्चिंग एक्सपीरियंस कि हम उस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं. तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो हम नोट कर सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड दीज फैक्ट्स विल बी लाइक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. आप मेंशन कर सकते हो इन फैक्ट्स को हेल्थ में whenever there is any question with regard to rural health. So हम समझेंगे कि rural health care का क्या structure है, because this is what we need to take away from this particular article. फिर उन्होंने कुछ हरियाणा के बारे में बात की है कि कुछ facts दिए हुए हैं, but this is not very specific to our exam. हमको ये समझने की ज़रूरत है कि रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की टीयरिंग किस तरीके से PHCs हैं, देन वी हैव over them the CSCs, below the PSCs we have the सब हेल्थ सेंटर. सो वो सारा हमको टीयरिंग समझना पड़ेगा. बट एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज टू टेक डाउन दीज फैक्ट्स दैट आई हैव हाईलाइटेड. सो यू कैन सी दैट काफ़ी मैंने फैक्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं. सो दैट इज समथिंग यू कैन take down and you can jot down, which is something you can mention as far as data is concerned कि किस तरीके से हमारा जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, it is severely lacking in infrastructure, it is severely lacking in manpower also. डॉक्टर्स नहीं है, असिस्टेंट्स नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमको मेंट करने की ज़रूरत है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड इन कोविड 2.0. तो ये सारा आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज you can note it down. So these are the things that you need to jot down. Now what we need to understand is what is the rural healthcare infrastructure in the country. किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो टीयरिंग है वो एनविसेज की हुई है. So for understanding the rural healthcare system, let's go to a government website. So right from the horse's mouth, गवर्नमेंट की वेबसाइट विकासपीडिया. तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, and please try to understand it because a lot of aspirants don't understand the rural healthcare. So it is very important for us to understand it because you know that as per census 2011 we have a greater part of the population, around 69% of the people living in rural areas. और फ्यूचर में इस तरीके का कोविड पैंडेमिक वाली सिचुएशन ना हो जैसे हार्ड हिट किया हुआ है, तो हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो हमको सोचने की ज़रूरत है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीयरिंग फर्स्ट, एंड देन ओनली वी कैन सजेस्ट चेंजेस.
तो जो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू कैन सी दैट इट इज हैविंग अ 3 tier सिस्टम। 3 tier सिस्टम है। सबसे बेसिक लेवल पे, सबसे बहुत जो ग्राउंड लेवल पे है, दैट इज द सब सेंटर विच इज द SHC, सब हेल्थ सेंटर। सो सब हेल्थ सेंटर में देख लेते हैं, और सब सेंटर व्हाट इज इट। So you can see for the plain area it is catering to a population of 5,000, in the hilly districts catering to a population of 3,000. So that means a cluster of villages. तो उनको cater कर रहा है. So it is the most peripheral and the first contact point between the primary health care system and the community. So क्या फंक्शंस केटर करता है? सो वेरी वेरी बेसिक, यू नो, फॉर एग्जांपल लेट्स से चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन। तो ये जो बहुत बेसिक लेवल पे जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर वो केटर करता है। एंड हाउ मेनी पीपल वुड बी देयर मैनिंग इट? सो जस्ट 2 people, 1 female who could be auxiliary nurse, midwife, ANM or female health worker, or otherwise so there is an option, and 1 health worker. So 2 लोग यहाँ पे होते हैं बेसिकली. सो दिस इज लाइक अ मोस्ट बेसिक वन. सो एट द बॉटम वी हैव SHCs. Over them we have the PHCs, and over them we have the CHCs. That makes it the primary health care system in the rural areas. तो ये टीयरिंग है. तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक बार देख लेते हैं. So it is the first point between the village community and the medical officer. तो यहाँ पे एक particular medical officer deputed होता है, which is not the case at the SHC level. इस केस में नहीं होता. तो आपने देख लिया किस तरीके का स्टाफ होता है, just 2 people in the case of this. So यहाँ पे क्या क्या होता है? Provides an integrated curative and preventive health care. प्रिवेंटिव भी होता है एज इन द केस ऑफ दिस, एंड क्यूरेटिव ऑल्सो. सो थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का इलाज भी होता है यहाँ पे, बट द एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव एस्पेक्ट्स ऑन हेल्थ केयर, नॉट द क्यूरेटिव वंस. क्योंकि इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो एक बहुत बेसिक लेवल की यहाँ पे भी सर्विसेज होती हैं. इट इज मैन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर सपोर्टेड बाय 14 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ. अब आपको लगता है, आप बताइए कि रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मेडिकल ऑफिसर बहुत सारे केसेस में आपको पता है नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं. आपने खुद भी देखा होगा और शायद न्यूज में भी सुना होगा, इफ यू डोंट बिलोंग टू अ विलेज और द रूरल एरिया. एंड 14 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ. 14, आई मीन 14 इज लाइक इन वेरी वेरी रेयर केसेस. साउथ इंडिया में जैसे केरला है, वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो with some exceptions, by and large this is not there in most parts of the country. This is something the author in that particular article, Mr. Huda, is talking about कि हमको वो strengthen करने की ज़रूरत है. Alright, let's move on to the next tier, which is the highest tier as far as the rural health infrastructure is concerned, as far as the primary health care is concerned. तो यहाँ पे CSC कहते हैं, which is the community health center. It is required to be manned by 4 medical specialists. 4 medical specialists, surgeon, physician, gynecologist and pediatrician, supported by 21 paramedical and other staff. So surgeon भी है, physician भी है, gyne भी है and pediatrician भी है, supported by 21 paramedical and other staff, right? So this is something that the author is highlighting कि किस तरीके से हमको जो primary health care है वो robust करना चाहिए. जब हम उसको अच्छा करेंगे तो इस तरीके का जो पैंडमिक वाली सिचुएशन आएगी, कोविड वेव आएगी, या आजकल बहुत एनसीडीज का प्रेवलेंस है. एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रही हैं. रूरल एरियाज में भी स्प्रेड कर रही हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस रूरल एरियाज में भी हो रहे हैं. आपको पता है देयर इज नो पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज अनटच्ड by the modern lifestyle, the changing lifestyle. So जो इन tiers हैं हमको उनको strengthen करने की ज़रूरत है, and only when we strengthen that network we would be in a better position to take care of the majority and overwhelming majority of Indians who reside in rural area. This is what the article is saying, and I hope you've understood it. By the way, those of you who are wondering कि जो टीयरिंग मैंने बताया इसके ऊपर क्या आता है, सेकेंडरी, दैट इज लाइक द प्राइमरी वन. द सेकेंडरी लेवल पे क्या होती है? सेकेंडरी लेवल पे होती है दो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. सो प्राइमरी जो टीयरिंग की हमने 1 2 3, दैट इज द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. सेकेंडरी बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, और उसके ऊपर होता है टर्शरी, विच इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द टर्शरी वन.
राइट. सो जो बड़े केसेस होते हैं SDH हैंडल करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैंडल करते हैं. अगर उनके बस का भी नहीं होता, इट इज लाइक समथिंग सीरियस which requires some big surgery or something, then it is referred to the district hospitals. So this is the first article. Now let's move on to the next article, which is about digital tax tussles. Okay, we will be moving to this one, the bigger one, about Indo-Bangladesh relationship. So let's talk about this important article दोस्तों, which is about Indo-Bangladesh relations. थोड़ा सा आपको understanding मिलेगा. This is a fresh article that we are going to do. Comments to avoid in long-standing ties. Some actions of political figures in India are detrimental to the consolidation of cordial bilateral ties. So what it is saying is कि किस तरीके से कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोल देते हैं कि दो देशों के बीच में टाइज खराब हो सकती है, हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं बाकी कंट्रीज के साथ वो खराब हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ही हैज जस्ट साइटेड द केस ऑफ द स्टेटमेंट दैट वाज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली लास्ट मंथ about a new strain of novel coronavirus that has been observed in Singapore that was said to be extremely perilous for children and could visit India as part of the third wave. So this is what the assertion was made by the Chief Minister of Delhi, and the External Affairs Minister criticized the Chief Minister of Delhi, saying that these are irresponsible comments and should be best avoided. तो ये जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं ठीक है, आपने उनको क्रिटिसाइज कर लिया, बहुत अच्छा है. बाय द वे उनको नहीं बोलना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को दिल्ली के ऐसी बात विच कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. बट आप अपने मिनिस्टर्स को भी क्रिटिसाइज करो, आप अपनी गवर्नमेंट के लोगों को भी क्रिटिसाइज करो. फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ होम मिनिस्टर कि किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के जो लोग हैं इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इन इंडिया वुमेन कहा और भी बातें बोली दैट यू कैन सी ओवर हियर हाइलाइटेड. So Bangladeshi जो foreign minister he was not happy about it and that could really damage the ties between two countries. So हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ऑन सम अदर कंट्री और स्पीकिंग अबाउट एन इशू विच इज रिलेटेड टू सम अदर कंट्री. तो काफ़ी समझ से वो काम लेना चाहिए एंड दिस इज व्हाट द ऑथर हैज हाईलाइटेड एंड ही हैज हाईलाइटेड सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल ही हैज फर्स्ट हाईलाइटेड व्हाट आर द challenges that are there in the Indo-Bangladesh relations. For example, perennially favorable balance of trade with India. So India का positive balance of trade है, at least किसी country से तो favorable है, because in most of the cases you know what is there. Drought and flood in the 54 transboundary rivers flowing from India. एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम है, तीसरा रिवर डिस्प्यूट आपको पता है दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज. And the smuggling of goods and vulnerable human beings. So smuggling of goods, smuggling of human beings, trafficking for flesh trade and the smuggling of cattle also. आपको पता है इंडिया से बहुत कैटल बांग्लादेश में इलीगली ट्रैफिक किया जाता है विच इज़ अ बिग चैलेंज इन द इंडो बांग्लादेश रिलेशन. तो इस तरीके से बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं बट नॉनदलेस व्हाट इट इज ऑल्सो हाईलाइटिंग इज दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अप टू 2008 उससे पहले आपको पता है कि जो गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में दैट वाज प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया, खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी, कई सारे केसेस भी हुए थे. So the relations were not very cordial, but after 2008 we had the government of Sheikh Hasina, who is the daughter of Mujibur Rahman, and Sheikh Mujibur Rahman, you know that he had very good relations with India. India ने काफ़ी support किया उनको भुक्ति बाहिनी में, and as such Bangladesh was liberated. So what it is saying that there are certain positive steps that in fact a lot of positive steps that she has taken. For example, she has curbed the shelter that was given to northeast militants. So northeast के जो militants थे वो यहाँ पे shelter ले लेते थे and जो इससे पहले की government थी वो उनको shelter दिया करते थे and that used to lead to a lot of strife in the northeast. What वो काफ़ी कम हो गया है. So one of the very important reasons is this, that Bangladesh provides no shelter to them now, at least officially. एंड सेकेंड इज द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दोनों देशों ने साथ में मिलकर शुरू किए हैं. देन इट टॉक्स अबाउट दीज इनिशिएटिव्स लाइक द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट बाय लैंड, रिवर एंड यूज ऑफ बांग्लादेशी पोर्ट्स. Indian investment in Bangladesh, a lot of companies, in fact these big companies like the power companies and telecommunications companies, they are investing heavily in Bangladesh. So these are some of the
थिंग्स विच आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलता रहे, बिकॉज बांग्लादेश इज गोइंग टू इमर्ज एज अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस इट हैज, एंड बांग्लादेश इज इकोनॉमिकली डूइंग वेरी वेरी वेल. बाय द वे, इंडिया में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमिकली. दे थिंक दैट बांग्लादेश इज अ पुअर कंट्री. अगर आप उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखोगे तो काफ़ी अच्छा कर रहा है कुछ सालों से, एंड अ लॉट ऑफ पुअर पीपल एक्चुअली हैव बीन अपलिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी. अच्छा इंडस्ट्री वाइज कर रहा है इकोनॉमिकली. टेक्सटाइल में आपको पता है इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने. सो एज सच डोंट अंडर एस्टिमेटेड. काफ़ी सारे इंडिसेस हैं जब आप देखोगे यूपीएससी की तैयारी के दौरान कि बांग्लादेश ऊपर है, एंड यू आर लेफ्ट वंडरिंग कि बांग्लादेश ऊपर है, इन सम केसेस पाकिस्तान भी ऊपर है. सो इंडिया को अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है बहुत सारे सेक्टर्स में. सो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज दोस्तों. व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? सो वन इज दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बाय द वे, विच वी हैव ऑलरेडी डन. इट्स नॉट एन आर्टिकल, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस थिंग वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन द 1st of June. I will put that in the I button. All you have to do is just press the I button. Then the second one is this: behind headlines and numbers, stories of invisible lives. ये भी relevant है. चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, we have covered it in the editorial of 2nd of June. This is not important. Okay, एक आर्टिकल बच गया बाय द वे इस पेज से. द फर्स्ट पेज इज देयर फ्रॉम द फर्स्ट पेज विच इज डिजिटल टैक्स टसल्स. ये समझ लेते हैं थोड़ा सा. दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडो यूएस रिलेशन. सो अगेन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियाज रिलेशनशिप विद लेट्स से यूएस. सो क्या फ्रिक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं? तो ये बोल रहा है डिजिटल टैक्स टसल्स. तो डिजिटल टैक्स टसल मतलब जो यूएस की कंपनीज हैं इंडिया में, जो इंडियन कंपनी ने टैक्स किया हुआ है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द यूएस विल ऑल्सो पिनलाइज द इंडियन गुड्स. उन पे टैरिफ लगा के, ताकि जो बदला लिया जा सके बेसिकली इंडिया से, बिकॉज इंडिया इज टैक्सिंग द यूएस कंपनीज विच इज एज पर द यूएस डिस्क्रिमिनेटरी, बिकॉज इंडिया levies 2% digital service tax on these e-commerce operators with a turnover of more than 2 crore rupees. एंड कौन से जो ऑपरेटर्स हैं नॉन रेसिडेंट, मतलब फॉरेन कंपनीज के, और ज़्यादातर आपको पता है यूएस की है. तो यूएस ने क्या अनाउंस किया अभी, बाय द वे इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया बिकॉज देयर वाज दिस बैकलैश. वॉपिंग 25% टैरिफ ऑन ओवर $2 billion ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम 6 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है. बाकी कंट्रीज यू कैन सी ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूके. तो यूएस का मानना है कि जो इनकी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, इंडिया इनको टैक्स करता है, डिजिटल सर्विस टैक्स लगाता है 2%. तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी. इंडिया अपनी कंपनीज पे क्यों टैक्स नहीं लगाता वो? तो दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ द मैटर इज. बट अभी वो सस्पेंड किया हुआ है, बट यूएस इज सेइंग दैट इन फ्यूचर वी विल डू मोर इन्वेस्टिगेशन, और really if it is found discriminatory then we will reimpose, we will slap those tariffs to the tune of 25% on Indian goods and goods from other countries. So this is the spirit of the article, and the article is saying that ये जो टाइम है, कोविड पैंडेमिक, डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय कोविड पैंडेमिक, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, lack of manufacturing activity taking place, तो अभी this is the least we should do. We cannot afford a tariff war. It is not just for India. No country can afford a tariff war. This is what it is saying. Already we have witnessed tariff war between US and China, in some way between US and India. So this is not the time to do it, for God's sake. This is what the article is. So that was all for the day दोस्तों. If you like the session, please give it a thumbs up, and I will see you in the next session. Till then, take care. Have a good day ahead.